جو وومن کانفرنس ہے، سیکنڈ وومن کانفرنس، اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے رہے گی۔ جیسا کہ آپ سب نے یہاں پر دیکھا ہے، جو ہمارا تھیم ہے، ٹاپک ہے اسٹیجز آف وومنس رول ان ببلیکل پرسپیکٹو۔ تو اس میں ہمارے پاس 3 اسپیکرز ہیں اور 3 ٹاپکس ہیں۔ ایک پوائنٹ کو بیسیکلی کمبائن کر دیا گیا ہے، اس کو 2 سے 1 بنا دیا گیا ہے، اور اس کی جو ترتیب بھی رہے گی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو اس کے کردار ہیں اس میں جو فرسٹ پہ ہے وہ بیوی اور ماں کا کردار کمبائن کر دیا گیا ہے، جبکہ پہلے سپریٹ رکھا تھا، ابھی اس کو کسی وجہ سے کمبائن کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد ہے بیٹی کا کردار، جس کو بہن سنتھیا اسپیچ کریں گی یہاں پر آ کر، اور اس کے بعد لاسٹ پر رہے گا ہماری معزز محترم بہت پیاری بہن اولیویا کے لیے پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ تو لاسٹ پر وہ بیکاز وہ رہے گا روحانی لیول پر اور سماجی لیول پر، سوشل لیول پر، دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے کہ کس طرح سے ہم اپنی لائف کو بیلنس کر کے گزار سکتے ہیں۔ تو اوور آل سب چیزوں کو کلوزنگ میں ہمیں جو جس کو کہتے ہیں کنکلوژن رہے گا، وہ ہم اپنی پیاری بہن سے سیکھیں گے۔ اور چونکہ میں فرسٹ پہ کروں گی تو میں یہیں پر ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہیں پہ جیسا کہ ابھی ہمارے پاس کچھ نئے چہرے ہیں، آلموسٹ ہم ورشپ سینٹر جب جاتے ہیں تو سب سے ملاقات ہوتی بھی رہتی ہے گاہے بگاہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو میں اپنا تعارف کروانا چاہتی ہوں۔ میرا نام کرن سیمسن ہے۔ ہم لوگ لاسٹ 7 ایئرس سے کے ساتھ یونائٹیڈ ہیں، اور ہم نے اس منسٹری کے ساتھ، خدا کے خادم کے ساتھ چل کر اپنی زندگی میں بہت ہی برکتوں کو اور سب چیزوں کو خداوند کے نام سے لیا بھی ہے اور سیکھا ہے، سب سے بڑھ کر سیکھا ہے۔ جو آج ہم ہیں یہ خدا کے خادم اور اس منسٹری کی بدولت ہے۔ سارا جلال خداوند کے نام کو اور اس منسٹری کو ملے۔ آپ کے پاس بائبلز ہیں تو پلیز آپ ایکٹیو رہیے بائبل کھولنے کے لیے۔ اگر نہیں تو یہاں پر بائبلز ہیں، آپ لے سکتے ہیں، جس کو چاہیے تو آپ بائبل لے سکتے ہیں۔ بیوی اور ماں کے طور پر کردار۔ بائبل مقدس زندگی کی کتاب ہے اور یہ زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے۔ ہماری زندگی کے ہر ایریا میں خدا کا کلام کافی ہے۔ ہمیں کسی دوسرے انسپریشنل موٹیویشنل کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایکسٹرا بک کو بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ The word of God is sufficient, enough in all areas of our life۔ خدا کا کلام ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 27ویں اور 28ویں آیت کو ریڈ کر کے، تلاوت کر کے اس کو میں سٹارٹ کروں گی۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ آمین۔ دنیا کی تخلیق کے وقت جب خدا نے آدم اور ہوا کو پیدا کیا تو یہاں جو نر و ناری کا مطلب ہے، مرد اور عورت خدا نے ان کو پیدا کیا۔ وہ میاں اور بیوی کے طور پر پیدا ہوئے، مطلب جو پہلا رشتہ خدا نے بنایا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس خوبصورت رشتے میں جس رشتے یا کردار کو ہم نے اس وومن کانفرنس کا تھیم بنایا ہے وہ عورت کا کردار ہے۔ جیسے کہ بائبل مقدس کے 2 عہد ہیں، پرانے عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ اس میں بہت زیادہ، اسپیشلی پرانے عہد نامے میں بہت زیادہ عورتوں کے
नाम और किरदार दर्ज हैं, और हम उनमें से हर एक की जिंदगी में से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और हमें सीखना भी चाहिए। बीइंग अ क्रिश्चियन वुमेन, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि बाइबल मुकद्दस जिंदगी की किताब है, तो जिंदा कलाम है, तो डेफिनेटली जिंदगियों को तब्दील करता है, और हमने इसी को अपनी रहनुमाई के लिए हमेशा खोलना है। तो यहाँ पर जो चंद पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें बीवी और माँ के तौर पर औरत का किरदार है। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा, औरत की तख्लीक के बाद जो पहला रिश्ता उसको मिला वो बीवी का है। मतलब कि औरत की जो उसकी पर्सनैलिटी या उसका वजूद है, फेमिनिज्म, वो बीवी से उसका स्टार्ट हुआ है। आप में से कोई बता सकता है कि बाइबल मुकद्दस में एक फुल फ्लेज पैसेज है, लॉन्ग पैसेज है, जो औरत के किरदार पर बयान किया गया है? यस, इमसाल 31। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। एग्जैक्टली यही है, इमसाल 31। और ये बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम है, जिसको हम में से हर कोई अपनी जिंदगी में मेडिटेट करे। ऑलरेडी इसकी बरकत को हम जो भी इसको अपनी जिंदगी में लेता है, वो इसकी बरकत को अपनी जिंदगी में ले रहा है। और मैं इसकी जिंदा मिसाल आपके सामने हूँ। मैं जब इसको फुल फ्लेज रीड करूंगी तो मैं अपनी टेस्टिमनीज भी आपके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि लास्ट में भी हमने जब इसको करा था तो यही बात की थी, जब हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं खुदा के कलाम से, तो तभी हम उसको फुल फ्लेज तरीके से बता सकते हैं। यहाँ हम कलाम मुकद्दस में बिब्लिकल वाइफ या खुदा परस्त बीवी के किरदार को देखेंगे। पहले बीवी के किरदार को, और उसके बाद मैं माँ के किरदार के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, ताकि यहाँ हम खुदा के कलाम में से एक बीवी होते हुए खुद को निखार सकें, और जो बेटियां हैं, बहनें हैं, इन फ्यूचर जब वो इस स्टेज पर आती हैं तो वो भी अपने आप को कलाम के सांचे में ढाल सकें। जैसे कि पैदाइश 1 बाब उसकी 27 और 28 आयत को हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा है कि खुदा ने मर्द और औरत दोनों को पैदा किया और उनको इख्तियार दिया। ये इख्तियार उनको एक दूसरे के ऊपर नहीं दिया, ये इख्तियार खुदा ने उनको दिया था कि जमीन को मामूरो महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। जबकि अगर देखा जाए हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें चीजें डिफरेंट हैं। जैसे ही शादी होती है तो बीइंग अ वाइफ कोशिश होती है कि मैं अपने शौहर को अपने हाथ में कर लूं, मेरी उंगलियों पर नाचे। और सेम ऐसे ही बीइंग अ हस्बैंड, उसकी कोशिश होती है कि मैं इसको दबा के रखूं कि ये मेरी बात सुने। तो बेसिकली ये एक रॉन्ग रास्ता है जिसके ऊपर अगर हम चल रहे हैं तो आज ये मूवमेंट है हमारे पास कि हम अपने आप को, इंक्लूडिंग मी, हम अपने आप को करेक्ट कर लें कि हमने एक दूसरे को इख्तियार में नहीं लेना है। हमने दुनिया की जो बाकी मखलूकात है उसके ऊपर खुदा ने हमें इख्तियार रखने के लिए कहा है, ना कि एक दूसरे के ऊपर हुक्मरानी करने या इख्तियार रखने का हुक्म दिया है। तो यहाँ ये बात क्लियर होती है कि औरत और मर्द दोनों को खुदा ने इक्वल पैदा किया है और औरत कमतर नहीं पैदा की गई। और दूसरा पॉइंट जो हम सीखते हैं कि खुदा ने औरत को मर्द के लिए एक मददगार के तौर पर पैदा किया है। फिर से इस बात पर गौर करते चलें कि मददगार होना या हेल्पर होना औरत को डाउन करना या कम करना नहीं है। जैसे कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि खुदा हमारा मददगार है। हर बात में हम कहते हैं कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा मेरा मददगार है। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक मतलब मेरी मदद कहाँ से आएगी? तो वो डेफिनेटली हमारे खुदा से है। तो जैसे खुदा हमारा मददगार है, तो ये एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो खुदा ने एक औरत की जिंदगी में रखी है कि खुदा ने उसको जब तख्लीक किया उसको मददगार बनाया, जैसे खुदा मददगार है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे पास एक बहुत खूबसूरत चीज है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम इसको कैरी किए हुए हैं। ये खुदा की सिफ्त है जो हमारे अंदर खुदा ने रखी है।
کہ खुदा ने औरत को मददगार बनाया है और ये उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी कदर को, उसके रुतबे को बिल्कुल भी कम नहीं करता। तीसरा पॉइंट जो हम सीखेंगे वो है अमसाल, जो कि हिकमत की किताब है। इसमें हर आयत जो है हमें जिंदगी को गुजारने का, तरबियत करने के लिए और हिकमत को हासिल करने के लिए पावरफुल खुदा का कलाम है। इसमें अमसाल 12 बाब उसकी 4 आयत में देखेंगे, नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज है, लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में बोसीदगी की मानिंद है। 2 तरह की औरतें हैं यहाँ पर, नेक औरत जो मतलब खुदा परस्त या खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली, या अपने शौहर के लिए वो ताज है। आमीन। और मैं ईमान रखती हूँ कि हम में से हर एक जो यहाँ पर मैरिड है और वो अपने शौहर के सर के लिए ताज बनने की हर कोशिश करती है, और अगर किसी भी तरह से कुछ कमी रह जाती है या कुछ हालात अगर ऐसे हो जाते हैं तो भी वो अपने आप को डाउन मत करे, बल्कि खुदा के हाथों में दे सारे मामलात को। तो वो खुदा उसको, जो ताज होता है ना, वो इज्जत की अलामत होता है। गले का तौक जो होता है वो गुलामी की अलामत होता है। तो खुदा ने अगर औरत को सर का ताज कहा है उसके मर्द के लिए, तो खुदा उसकी इज्जत की हिफाजत करना जानता है। इसका जिम्मा खुदा ने अपने हाथों में लिया है। अगर आप अपने हालातों में हैं, फंस गए हैं, कुछ किसी भी तरह से मुश्किल में हैं, तो आप बिलीव करिए, ईमान रहिए कि मेरा खुदा मुझे इज्जत देना जानता है। इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा, वो वादों का सच्चा खुदा है। अपने हालातों में फंसकर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हम अपने आप को ये बिल्कुल भी नहीं समझें कि हम किसी भी तरह से अपने शौहर के लिए तौक हैं, गले का तौक। अगर कभी कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि मुनासिब नहीं है, तो उस जो तौक है ना, जो आपको हर्ट करता है, आपकी नेक के अराउंड रहता है, वो गुलामों के गले में डाला जाता था और उनकी नेक को हमेशा हर्ट करता रहता था। तो ऐसे ही अगर आपके रिश्ते में कोई भी तौक आ गया है, गले में कोई भी फंदा पड़ा हुआ है, तो उसको खुदा का नाम लेकर अपने रिश्ते में से क्लियर कर लीजिए और सिर्फ सर का ताज बनिए। वी आर क्राउन ऑफ ग्लोरी। आमीन। आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम born to be blessed। लेकिन अगर कोई भी बीवी जो कलाम पर नहीं चल रही है और किसी भी तरह से नदामत लाती है, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह की औरतें हैं, एक जो है सर का ताज और दूसरी जो नदामत लाती है। जो नदामत लाती है, अगर किसी भी मौका पर या जिंदगी के किसी भी हिस्से में या साथ चलते हुए अगर कोई ऐसा सिचुएशन बन गई है कि आप अपने शौहर के लिए नदामत ला रही हैं, तो काइंडली खुदा का कलाम आपकी इस्लाह के लिए है। आप डीप जाइए खुदा के कलाम में, प्रेयर में, फास्टिंग में। खुदावंद आपके लिए जो भी नदामत का पॉइंट है उसको क्लियर कर देगा। आमीन। खुदा के कलाम में ताकत है और कलाम जिंदगियों को तब्दील करता है। इस बात को हम अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे ताकि हम इस चीज को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल करना शुरू करें। जो चौथा पॉइंट हम यहाँ पर सीखेंगे वो है इफिसियों 5वां बाब उसकी 21वीं आयत से 24वीं आयत तक हम इसको देखेंगे। इफिसियों 5वां बाब उसकी 21वीं से 24वीं आयत तक। और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। ऐ बीवियों, अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावन की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे हों। आमीन। एक बात जो फर्स्ट पर बिल्कुल क्लियर है, जो फर्स्ट वर्स में है, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। एक दूसरे के। अगली वर्स में है, ऐ बीवियों, अपने शौहरों के ताबे रहो। फर्स्ट वर्स हमें हस्बैंड वाइफ दोनों को क्लियर बता देती है कि जस्ट नॉट ओनली वाइफ, जस्ट वाइफ नहीं है जिसको ताबेदारी में या सबमिशन में आना है। दोनों को एक दूसरे के साथ
हम्बल एटीट्यूड के साथ सबमिशन में आना है, ठीक है। और यहाँ पर जो सबमिशन है ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है कि आपका शौहर आपके ऊपर रूल करना शुरू कर दे, या अगर आप अपने आप या वो आपको सबमिट करता है अपने आप को तो आप उसको रूल करना शुरू कर दें। ये फर्स्ट पॉइंट जो हमने ऑलरेडी क्लियरली सीख लिया कि खुदा ने तख्लीक के टाइम पर भी ऐसा नहीं कहा था कि आप एक दूसरे को रूल करो। आपने पूरे जो बाकी की मखलूकात हैं उसको रूल करना है और मिलकर अपनी जिंदगी को लेवल करके बैलेंस करके चलाना है। इस बात को और भी अच्छे से हम समझ सकते हैं जब हम इस हेडशिप के ऑर्डर को समझते हैं कि फर्स्ट पर खुदा है और उसके बाद जीसस है और उसके बाद हस्बैंड है और फिर वाइफ है। खुदा मसीह का सर है और मसीह मर्द का सर है और मर्द औरत का सर है। ये एक ऑर्डर है। जब हम इस ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि खुदा का कलाम है, एक तरतीब है इसमें। जिंदगी को बेस्ट वे में गुजारने के लिए यही हमारे लिए है। तो समटाइम ऐसा भी रहता है फैमिलीज में कि इन केस अगर हस्बैंड सिकनेस की वजह से या फिर लो सैलरी की वजह से अगर उस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं कर पा रहा और अगर औरत वहां पर डोमिनेंट हो गई है, उसकी हाई सैलरी है या फिर वो हस्बैंड के सिक होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा और जो औरत है वो घर की चीजों को चला रही है, दैट्स वेरी गुड, बट डोंट टेक एडवांटेज। आपको ताबेदारी वहां पर रखनी है, उसको डीप डाउन नहीं करना है कि मैं कर रही हूँ। नो, इट्स वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। आप उसको ये कभी भी मत फील करवाइए कि पैसा आप ला रहे हो तो अब आप रूल करोगे। नो, आप सबमिट करो अपने आप को जैसे उसने आपको सबमिट किया है, बिकॉज सबमिशन इज फ्रॉम बोथ साइड। एक जैसा कि आपने फर्स्ट वर्स में देख लिया था कि एक सबमिट नहीं करता, बोथ आर सबमिटिंग टू ईच अदर। जबकि नॉर्मली हमारे माशरे में भी ये ट्रेंड बन जाता है कि हम दौड़ना शुरू कर देते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, और जबकि वो दौड़ नहीं दौड़नी चाहिए। डेफिनेटली अगर दौड़ेंगे तो एक जीतता है और एक हारता है। अगर आप हाथ पकड़कर चलते हैं बैलेंस वे में तो आप चलते ही रहेंगे, आप कभी भी हार और जीत को फिर अपनी लाइफ में नहीं लेकर आएंगे। इसको जो सबमिशन है बेसिकली, इसको मैं और ज्यादा क्लियर आपको इस तरह से करना चाहती हूँ कि जिस तरह से जीसस ने अपने आप को गॉड को सबमिट करा था, राइट? जीसस एज वेल सबमिट हिमसेल्फ टू गॉड। दैट आल्सो डजंट मीन दैट जीसस इज लेस। अगर आप सबमिट करते हो तो आप लेस नहीं होते। हस्बैंड सबमिट करते तो वो लेस नहीं होता, बल्कि इक्वल वे में जाकर आप खुदा को सर्व करते हैं और अपनी लाइफ में हैप्पी रहते हैं। अदरवाइज जीसस विल बी नॉट फुली गॉड। अगर जीसस ने सबमिट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह कामिल खुदा नहीं है, वो कामिल खुदा है। Submission means be one. Submission means be one in all the areas of life. Hallelujah. यहाँ पर जब हमने इस वर्स को रीड करा था, इफिसियों 5 बाब उसकी 21 से 24वीं आयत में, तो वहां पर वर्स के लास्ट में था 24वीं वर्स के, लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है वैसे ही बीवियां भी हर बात में क्वेश्चन मार्क। कलाम ने हमें हर बात में ताबे रहने के लिए बोला है। बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे हो, बट आई वांट टू पुट क्वेश्चन मार्क। क्यों उसकी जरूरत है? बिकॉज सम टाइम जो एक गॉडली हस्बैंड है, अगर वो गॉडली नहीं है उस वे में, अगर वो आउट ऑफ द बाइबल के सर्कल से बाहर आपको कुछ करने को कहता है या खुद कुछ करता है, आप उसको सपोर्ट नहीं करते। आपको बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं करना। और अगर आपको वो कुछ करने के लिए कलाम के दायरे से हट कर कुछ करने के लिए कहता है तो वो बात मानने के लिए आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता कलाम। आपने मानना है तो सिर्फ उस बात को जो कलाम पर मबनी है। हालेलुया। तो अगर कोई ऐसा हस्बैंड
आपकी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में कोई ऐसा हस्बैंड है या ऐसी कोई सिचुएशन है जो आप समझते हैं कि ये एक ईमानदार शौहर की ये क्वालिटी नहीं है, तो खुदा का कलाम उसकी इस्लाह के लिए, आपकी मदद के लिए रेडी है। आपने खुदा के कलाम को खोलना है, मांगना है, बोलना है, तो खुदा का कलाम आपके लिए मददगार है। जैसे खुदा आपका मददगार है, वो बेसिकली चीजों को आपके लिए, आपके हस्बैंड की लाइफ में ठीक करने की कुदरत रखता है, क्योंकि ये खुदा की जिम्मेदारी है, रिश्ता उसने बनाया है। और ये पहला रिश्ता है, मियाँ और बीवी का रिश्ता, खुदा इसकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो आप ईमान रखिए, ईमान रहिए कि खुदा ने जोड़ा है तो वो ही हमें संभालेगा। चीजें आ भी गई हैं तो आपके ईमानदार रहने से, ईमान रहने से खुदा आपके लिए उसकी इस्लाह करेगा और चीजें तब्दील करके आपके सामने प्योरीफाई करके लेकर आएगा, क्योंकि कलाम एक आग भी है जो भस्म कर देती है, सारी नजासतों को, सारी कमजोरियों को, कमियों को भस्म कर देती है और प्योर करके, क्लियर करके आपको दे देगा खुदा। आप खुदा पर ईमान रखिए। हालेलुया। जो 5वां पॉइंट हम सीखेंगे वो है पहला पत्रस उसका तीसरा बाब दूसरी आयत। पहला पत्रस तीसरा बाब दूसरी आयत। इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाएं। आमीन। ये खुदा का कलाम है जो आपको क्लियर बताता है कि आपका चाल चलन पाकीज़ा है, कलाम के मुताबिक आपकी जिंदगी है, आप अपने शौहर के लिए दुआ करते हैं तो खुदा उसका जिम्मा लेता है। आमीन। इसके बाद जो हम सीखेंगे अमसाल 14वां बाब उसकी पहली आयत। अमसाल 14वां बाब पहली आयत। दना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। दना औरत मतलब वो औरत जो विजडम से भरी हुई है, यकीनन अपना घर बनाती है, अपने रिश्तों को प्यार करती है, अपने खानदान को प्यार करती है, इज्जत देती है उनको और उनका ख्याल रखती है। और हेड ऑफ फैमिली मतलब अपने शौहर की बात मानती है, उसके साथ वफादारी और ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारती है। यहाँ पर अब्राहम और सारा की मिसाल हमारे सामने है और इसको हम पहला पत्रस तीसरा बाब उसकी 6ठी आयत में देखेंगे। पहला पत्रस तीसरा बाब 6ठी आयत। चुनाचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उससे खुदावंद कहती थी। हालेलुया। तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई। आमीन। अब सारा अब्राहम को ऑनर करती है, वो उसका हस्बैंड है और वो उसको खुदावंद कहती है, उसको ऑनर देती है। डेफिनेटली अब्राहम भी सारा को वापस में वैसा ही प्यार और ऑनर करता है। और हमारे लिए यहाँ पर ये है कि अगर हम भी नेकी कर रहे हैं तो हमें किसी डरावे से नहीं डरना। कोई चैलेंज आ गया है लाइफ में, आपको हस्बैंड को लेकर कुछ चीजें अगर फेस करना पड़ रही हैं तो आप डरिए मत। आप चुपचाप खुदा के कलाम को, उसके वादों को लीजिए, अपनी जिंदगी में ईमान से खड़े हो जाइए। खुदावंद आपके लिए बेहतर करता है, बेस्ट करता है। आमीन। दूसरी औरत जो अहमक है, जो अपने ही हाथों से अपने घर को बर्बाद करती है, कलाम मुकद्दस इसकी तस्वीर भी हमें दिखाता है। मलका आस्तर की कहानी हम सब जानते हैं। तो इस कहानी में जो बादशाह अक्सियोरस की जो पहली बीवी थी मलका, वश्ती मलका, वो बादशाह से गुस्ताखी करती है और अपनी हमाकत से अपना घर अपने ही हाथों से बर्बाद कर देती है। और फिर बाद में जो आस्तर है वो मलका, उसकी जगह पर मलका बन जाती है
اور وہ आस्तर मलका क्यों बनती है? क्योंकि वो विजडम से भरी हुई है। वो खूबसूरत तो है, हुस्न जमाल तो है, बट विजडम से भरी है। अगर वश्ती मलका पहले मलका थी तो क्या वो खूबसूरत नहीं थी? डेफिनेटली वो भी खूबसूरत थी, बट विजडम का वो लेवल नहीं था। जो विजडम का लेवल आस्तर के पास था, तो वो अपने ना सिर्फ वो मलका बन जाती है बल्कि अपनी पूरी यहूदी कौम को भी बचाने का वसीला बनती है। आमीन। अभी मैं आपको जो अमसाल 31 बाब, उसकी जैसे कि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बात करी है, इसको मैं आपको एक होमवर्क के तौर पर देना चाहती हूँ। अमसाल 31 बाब, उसकी 10वीं आयत से लेके बाब के आखिर तक, 10वीं से 31वीं आयत तक, ये जो पूरा पैसेज है मेरी पर्सनल लाइफ में भी और मेरी फैमिली में भी और आप सबके साथ भी और जिससे भी आपसे पहले भी मैं बात करती हूँ, खुदा का कलाम है। मेरी बात ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन खुदा के जो कलाम की खुदा की जो बात है वो ऊपर नीचे नहीं हो सकती। वो ऑथेंटिक है। जैसा खुदा ने कहा है वो वैसा ही आपकी जिंदगी में होता है और होगा। अगर आज आपने आज के दिन से इसको डे नाइट या जब भी आपको टाइम मिलता है ईमान से इसको मेडिटेट करना शुरू करें, इसको रीड करना शुरू करें, इसकी सारी बरकतें, इसकी सारी खूबियां आपकी लाइफ में आ जाएंगी। फिर वो जो उसकी एक पावर है ना, वो आपकी जिंदगी में काम करना शुरू, वो इन्फ्लुएंस करेगी, आपको ओवरकम कर लेगी कि वो अपने शौहर से हमेशा नेकी ही करेगी, बदी हरगिज नहीं करेगी। वो एक परफेक्ट जो पिक्चर है ना वो आपको दिखाती है। हम परफेक्शन में अगर अभी नहीं है, बट खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम भी परफेक्शन में जा सकते हैं। जैसे जीसस ने इंसान बनकर जब दुनिया में आए थे तो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की लाइफ उन्होंने स्पेंड करके दिखाया था कि अगर वो इंसान बनकर एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, देन व्हाई वी आर नॉट। हम भी कर सकते हैं अगर हम कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं, इसके ऊपर अमल करते हैं, तो इसकी हर वर्ड्स जो है वो आपकी जिंदगी में बड़ी बरकतें लेकर आएगी। आमीन। चंद एक पूरा का पूरा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जस्ट चंद एक जो है इसमें से आपके लिए पढ़ूंगी ताकि आप अभी से अपनी बरकत को रिसीव करें। नेकोकार बीवी किसको मिलती है? आप अपने आप को ब्लेस करें, मैं नेकोकार बीवी हूँ। आमीन। और मेरी कदर मुर्जान से भी ज्यादा है। उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफा की कमी नहीं। जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे टेस्टिमनी इसी पैसेज में से शेयर करूंगी, वो ये कलाम मेरी जिंदगी में पूरा हुआ, एक बार नहीं 2 बार। उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है। मैंने 2 चैलेंजेस अपनी जिंदगी में फेस किए थे अपनी मैरिड लाइफ में, एक आज से 4 साल पहले और एक थोड़े महीने पहले की बात है। बातें मैं वाकयात एक्सप्लेन नहीं करूंगी, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खुदा ने मुझे बरकत दी है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, वो बड़ी है। हालेलुया। कि एक मैंने अपने माँ की फैमिली की तरफ से एक मेरे ऊपर एक ऐसी बात आई जो कि एक इल्जाम के तौर पर थी, जिसको कि कहा गया कि ये मेरे रिश्ते को तोड़ भी सकती है। लेकिन मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि क्योंकि मैं खुदा में थी और मेरा शौहर, आप ऑलरेडी उनको जानते हैं, वो भी खुदा में हैं, तो खुदा ने उनके दिल को, उनकी विजडम को खोला और हमारी जिंदगी में जो ये कलाम है उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है, ये एज इट इज मेरी जिंदगी में पूरा हुआ। और थोड़े महीने पहले जो वाकया हुआ था वो उस लेवल का बड़ा नहीं था, बट वो एक पूरी फैमिली में डिस्टर्बेंस का बाइस बन सकता था एक बड़े लेवल पर। मेरी ससुराल फैमिली का वो वाकया, ये मेरी मदर फैमिली का वाकया था। तो वहां पर भी वो बात मेरे तक पहुंचने से पहले, जो कि मेरे ऊपर आई थी, मेरे तक पहुंचने से पहले मेरे हस्बैंड ने उसको डिफेंड कर कहा कि मैं उसको जानता हूँ। उसकी कोई बात जो उसके खिलाफ कहेगा, मैं उसको जानता हूँ कि वो क्या बोलती है और वो क्या कहती है, वो क्या करती है, ये मेरे से कुछ भी हिडन नहीं है। मीन्स कि मेरे शौहर के दिल को मेरे ऊपर एतमाद है। ऐसे ही आप अपने आप को ब्लेस करिए कि कभी भी इब्लीस जो एक हल्की सी मीठी सरगोशी करता है
आपके शौहर के दिल को आपकी तरफ से एतमाद को हिलाने जुलाने की कोशिश करता है। कभी भी कुछ भी सिचुएशन ऐसी आ सकती है, अगर नहीं है इसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर कभी आती है तो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में भी लीजिए और अपने शौहर को भी उसी कलाम से ब्लेस कीजिए जो ये खुदा का कलाम है। उसका दिल आपके ऊपर मुकम्मल एतमाद से भर जाएगा। आमीन। और अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। जो खुदा की बेटी होती है, जो कलाम पर चलती है, जो कलाम से पैदा की हुई है, वो कभी बदी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा खुदा बदी को देख ही नहीं सकता। तो स्पेशली हमने बेसिकली अगर हम यहाँ पर खुद को एम्पावर करें खुदा के कलाम से, अगर कोई चैलेंज या कोई सिचुएशन पर्सनल लाइफ में है तो कलाम है, अभी उसकी इस्लाह की जा सकती है। हम इसको सीख रहे हैं। अगर कोई हमें मिलता है, कोई बहन, कोई बेटी जो इन सिचुएशंस को फेस कर रही हैं, तो उनको हम कलाम से सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप खुदा के कलाम पर ईमान से खड़े हो जाइए। हालात खुदा बदलता है, क्योंकि कलाम जिंदगियों को तब्दील करता है। आमीन। हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है स्तुदा होगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश करो। आमीन। ये लास्ट वर्स भी मेरी जिंदगी में पूरी हुई है। माय हस्बैंड ऑलवेज प्रेज मी अमंग पीपल। प्रेज गॉड। अभी दूसरा जो यहाँ पर हमारा था, ये बीवी को लेकर मैंने एक्सप्लेन किया। अभी माँ को लेकर, माँ के तौर पर किरदार। हम पुरजोश, अमीर, खूबसूरत और पुरअज़म माँ के बारे में बहुत सारी बातें, मुस्बत बातें कर सकते हैं। और अगर हम एक खुदाप्रस्त या गॉडली मदर के बारे में बात करते हैं तो इससे मुराद ये नहीं कि वो परफेक्ट है। ये टाइटल होना कि यू आर अ गॉडली मदर और आई एम अ गॉडली मदर, ये परफेक्शन को शो नहीं करता। परफेक्ट इज ओनली गॉड, बट वी कैन ट्राई टू बी। ऐसा नहीं है कि हम हो ही नहीं सकते। वी कैन ट्राई, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट। बल्कि इससे मुराद ये है कि उसमें ऐसी खसूसियात होंगी जो उसने कलाम के मुताबिक अपनाई होंगी, वो उसे सबसे जुदा कर देंगी। आमीन। दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाब 1 से 7वीं आयत तक। जो फर्स्ट पे निकाल लेता है वो इसको रीड करने में हेल्प कर सकता है, बिकॉज एक लॉन्ग पैसेज है। दूसरा तिमोथियस पहला बाब 1-7 आयत। आमीन, आमीन। अब यहाँ पर हम सब इसको जानते हैं कि तिमोथियस को जो उसकी तालीम और तरबियत हुई है उसका क्रेडिट किसको गया है। उनका नाम यहाँ पर तेरी माँ यूनिके और तेरी नानी लुइस। बीइंग अ मदर हमारा नाम भी खुदा लेगा। ये जैकलिन, ओलिविया, सादिया, किरण, रजिया, नाइला, तूने अपने बच्चों की तरबियत ऐसे की है कि खुदा का जलाल इनमें दिखता है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है।
खुदा के साथ जो चलने वाली माएँ हैं, वो पहले नंबर पर दुआ करने वाली और कलाम पढ़ने वाली होती हैं, क्योंकि दुआ और कलाम यही 2 चीज़ें हैं कि हम खुदा के साथ चल सकते हैं। और खुदा के साथ जो चलने वाली माएँ हैं, वो अपनी तमाम ज़रूरियात में खुदा पर भरोसा करती हैं, क्योंकि जब वो कलाम को पढ़ती हैं, दुआ करती हैं, तो कलाम के जो सारे वादे हैं, वो उनकी ज़िंदगी में पूरे होना शुरू हो जाते हैं। अब वो सिर्फ जिस्मानी ज़रूरियात ही नहीं होती हैं, बल्कि रूहानी ज़रूरतें भी हैं, जो जैसे-जैसे आप कलाम को पढ़ते जाएँगे अपने बच्चों के लिए, अपने घराना के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, जो माँ की दुआ है, ये बहुत पावरफुल है। आमीन। और दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करनी है, बीइंग अ मदर। माँ होते हुए हमने खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश खुद भी करनी है और बच्चों को भी ये ही सिखाना है, बजाय ये कि उनकी एक के बाद एक जो है वो डिमांड आती जाए। आप उनको पहले बोलो कि फर्स्ट सीक द किंगडम, फिर ये सारी चीजें जो वर्ल्डली हैं ये भी आपको मिलती जाएंगी। पहले आप उसको खुदा के कलाम से, हम स्कूल भेजते हैं, वो एजुकेशन बहुत अच्छी है, बट घर पर, बिकॉज यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल में बाइबल्स नहीं है, बाइबल खुदा का कलाम उनको उस तरह से टीच नहीं किया जाता है स्कूल्स में, तो डेफिनेटली हमें खुद इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमने उनको इसमें मजबूत करना है। वो अपनी कमी और महरूमियों को फिर नहीं देखती, क्योंकि वो खुदा के कलाम को देखती हैं, और वो जो खुदा फरावानी से सब कुछ अता करने की कुदरत रखता है, वो फिर कसरत के साथ उनकी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। आमीन। जो खुदा के साथ चलने वाली माँ है, वो खुदा की ताबेदारी और वफादारी में रहती है, और वो अपनी ताबेदारी और वफादारी में रहने से डेफिनेटली जब आप खुदा के कलाम के साथ ताबेदारी और वफादारी में रहोगे, तो वो सारी बरकतों को हासिल करोगे जो उसमें लिखी हैं, और उससे क्या होगा कि खानदान ग्रो करता है, फिजिकल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, और हेल्थ के लेवल में भी। फिर कोई वबा आपके खैमा के नजदीक नहीं आती है। फिर खुदा के फरिश्ते आपकी राहों में आपकी हिफाजत करते हैं, और आप हादसात से और बहुत सारे प्रॉब्लम से हमेशा बचे रहते हैं। और जो घर का माहौल है वो खुशगवार रहता है। अगर हम घर में खुदा के कलाम की बातें करते हैं या खुदा का कलाम पढ़ते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हुए भी हम खुद भी सीख रहे होते हैं, तो उससे क्या रहता है कि हमारे घर का माहौल एक गॉडली माहौल बना रहता है। फिर उसमें अगर आपका बच्चा बिल्कुल छोटा है, तो उसका जो एक आपने ट्रैक सेट कर दिया है कि वो बाइबल रीडिंग करता है या बाइबल स्टोरी को वॉच करता है, फिर उसको दूसरी जो स्टोरीज हैं या वीडियोस हैं वो अट्रैक्ट ही नहीं करेंगी। अगर वो गीत गाना शुरू हो गया है, तो जो दूसरे फिल्मी गाने हैं वो उसको अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो बच्चा है। आपने जिस राह पर उसकी तरबियत कर दी है वो चलता रहेगा। उसके हाथ में अगर आपने कुछ भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार या कुछ भी पकड़ा दिया ना, तो वो उसी को बजाता रहेगा और गीत गाता रहेगा, क्योंकि ये बेस है, जो फाउंडेशन है, ये ग्राउंड है जो हमने फर्स्ट पे रेडी कर देनी है, और फिर वो कलाम कहता है कि बूढ़ा होकर भी उससे नहीं फिरेगा। अगर हम खुदावन यीशु मसीह को और उसके रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में काम करने देते हैं, तो आप बिलीव करिए कि हम खुद भी पॉलिश हो रहे होते हैं जब अपने बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि जब हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने अपने बचपन में मिस कर दी हुई होती हैं, तो हम भी उनको अपनी लाइफ में रीफिल कर रहे होते हैं। और लेकिन जब बीइंग अ मदर हम अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो जो हमारी पर्सनल प्रेयर लाइफ होती है, या वर्शिप करना, या खुदा के साथ पर्सनल लेवल पर बीइंग अ मदर, खुदा की बेटी हुए वक्त गुजारना, फिर वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर जब खुदा हमें रिश्ते देता है ना, तो वो रिश्तों को एक वे पे रख के लिमिटाइज भी करता है कि जो रिश्ते खुदा ने हमें दिए हैं, औलाद हमें दी है, औलाद के आ जाने से मेरा या हमारा
या खुदा का जो रिश्ता है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। खुदा रिश्ते देता है उनकी वर्शिप करने के लिए नहीं, वर्शिप ओनली खुदा की ही होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि बीइंग अ मदर या बीइंग अ वाइफ आप जस्ट रिश्तों में पड़ गए हैं और बस उन्हीं को ही टेक केयर कर रहे हैं और उन्हीं को ही कलाम सिखा रहे हैं, और आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, मसीह में खुदा में बढ़ने की, कुव्वत पाने की, वो स्ट्रांग नहीं हो रही है। उसको भी आपने खुदा के रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी मांगते रहना है कि वो आपको भी एक्टिव रखे और आप भी ग्रो करते जाएं। हमें अपने बच्चों को बैलेंस लाइफ गुजारना सिखानी है। जैसे कि स्कूल में जाते हैं, बाहर घूमते हैं, खेलते हैं दूसरे बच्चों के साथ, तो वहां पर या खानदान में, रिश्तेदारों में जब वो उठते बैठते हैं तो हमने उनको मोहतात तरीके से जिंदगी गुजारना सिखानी है। उनको बता देना है कि आपने रिस्पेक्ट करनी है अपने से बड़ों की, छोटों से प्यार करना है, केयर करनी है। और फिर जब भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हैं या कजन्स या किसी भी जो आपके उसके घर पे आपके बच्चे के पास खेलने के लिए आते हैं, अगर वो आपस में जो बातचीत करते हैं तो ऐसा नहीं आप उनको छोड़ के और खुद बिल्कुल ही उनको अलोन कर दिया और आप इग्नोर कर दो उनको। बिल्कुल भी आपका कान उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो बच्चे छोटे हैं या बड़े भी हैं कि व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, कि वो बात क्या कर रहे हैं। अगर वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वो वॉच क्या कर रहे हैं, ये माँ को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या वॉच कर रहा है या क्या बात कर रहा है अपने फ्रेंड के साथ। तो आप समटाइम क्या होता है कि बच्चों के जो रवैये होते हैं दूसरे बच्चों के साथ वो थोड़ा हार्श होते हैं, उनको हर्ट करने वाले होते हैं, तो आप उनको इस तरह से मत टीच करिए कि गो एंड यू आल्सो हर्ट हिम और हिट हिम। आप उसको यही बोलिए कि यू बी पोलाइट विद हिम। हमने जो खुदा का कलाम है उसी से ही अपने बच्चे की रहनुमाई करनी है और उसको सिखाना है। जो माँ है वो अपने घर में एक सोल्जर की तरह होती है। माँ को पाकरू के फलों से अपने आप को भरना है और पाकरू के सारे हथियारों को बांधना है, तभी वो सारी चीजों का मुकाबला कर सकती है कलाम के दायरे में रहते हुए, और खुदा उसका मददगार होता है, वो उसको स्ट्रेंथ देता है। अगर हम कलाम से खाली हैं तो अपने बच्चे के लिए अगर दुआ कर रहे हैं, हम कलाम से खाली हैं और अपने शौहर को नसीहत कर रहे हैं या सलाह कर रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा। हमारे चाल चलन को देख के, हमारे अंदर जो खुदा का कलाम है उस पर अमल करना है, उसको आप जब वो एक्टिवली उसको नजर आएगा तो खुदा उसको भी जो है वो दिखाएगा कि अगर वो कर सकती है या कर रही है तो शौहर भी उसको फॉलो करना शुरू करेगा, खुदा के कलाम पर चलना शुरू कर देगा। और सेम बच्चे भी ऐसा ही, बच्चों को हम जितना बोलते हैं वर्ड्स से उनको नसीहतें करते हैं, बेटा ये कर, बेटा वो कर, वो उतना सुनता नहीं। अगर आप भी दुआ करने बैठ गए हो तो वो आपको देखकर दुआ करेगा, वर्शिप करेगा। आप चर्च जा रहे हो तो वो भी चर्च जाएगा, वो फिर घर पर नहीं बैठेगा। मुकद्दसा मरियम की मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने ऑल्दो के सुपरनेचुरली जीसस को बर्थ दिया था, तो भी यहाँ पर हम देखते हैं लूका की इंजील 2 बाब 51 और 52 आयत में। लूका की इंजील 2 बाब 51 और 52 आयत में, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी, और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। आमीन। अब यहाँ पर अगर यीशु जब इंसान बनकर इस जमीन पर आया है, तो अगर वो अपनी माँ को ओबे कर रहा है, मुकद्दसा मरियम को ओबे कर रहा है, तो हमारे बच्चे अगर हमें ओबे नहीं करते, हमारी नाफरमानी करते हैं, तो उसमें कमजोर कौन रहा? डेफिनेटली मदर। कि हमने जब उसको तरबियत करा है, वो हमें ओबे नहीं कर रहा, हमने पोलाइट भी रहना है और समहाउ स्ट्रिक्ट भी होना है। ओबीडियंस सिखाना, ताबेदारी, फरमाबरदारी सिखाना अव्वल दर्जा होना चाहिए। क्योंकि अगर यीशु
ओबे कर रहा है अपनी मदर को, वो तो खुद खुदा है, बट वो एक कामिल इंसान बनकर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अपनी मदर को अगर ओबे कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों को एक जो द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जीसस है, उनको हमने वो दिखानी है. इफ जीसस कैन ओबे मदर मेरी, देन व्हाई यू कैन नॉट ओबे मी? आई एम आल्सो योर मदर. हुआ तो यही था ना कि मुकद्दसा मरियम ने जीसस को बर्थ दिया था, तो हम भी उसी चीज को करते हैं. तो डेफिनेटली हमारे बच्चे भी हमें ओबे करेंगे, बट हमें उनको पिक्चर जीसस की दिखानी है. ये नहीं कहना कि बेटा उस कजन को देख कैसे वो करता है, उसकी पिक्चर मत दिखाइए. वो फ्रेंड को देख वो कैसे करते हैं. अगर फ्रेंड दिखाएंगे, कजन दिखाएंगे, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएगी, बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएगी. वो कहेगी, वो सोचेगा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे नहीं, मेरे कजन्स या मेरे फ्रेंड्स को मेरे से ज्यादा लाइक करते हैं. अगर आप जीसस की पिक्चर दिखाएंगे तो डेफिनेटली ही विल फॉलो जीसस एंड ही विल ओबे यू. इसके अलावा बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ भी हमें ये चेक करना है कि व्हाट वी आर गेटिंग इन आवर हाउस टू ईट. फूड क्या हम लेकर आते हैं. कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है, हमें बताता है और सिखाता है कि कौन सा क्लीन फूड है और क्या अनक्लीन फूड है. हमने अपने बच्चों को बताना है, सिखाना है, बिकॉज यहाँ पर रहते हुए जब हमारे बच्चे स्कूल्स में जाते हैं तो वो समहाउ किसी का लंच अगर टेस्ट करते हैं, देन दे शुड नो व्हाट दे आर गोइंग टू ईट, राइट. तो उनको हमने अवेयरनेस देनी है कि वो क्या खा रहे हैं. कोई अनक्लीन फूड तो वो नहीं खा रहे, ऑल्दो कि वो इग्नोरेंस में है, बट अगर आप उनको अवेयरनेस दे देंगे तो वो डेफिनेटली दे विल आस्क देम कि आप क्या खा रहे हो, और वो उस चीज को लेने से मना कर देंगे. फिर हमने अपने बच्चों को हर एक जो रिचुअल चल रही है उसमें घुसाने की कोशिश नहीं करनी है. समटाइम स्कूल में चलते हुए कुछ चीजों में बच्चे इन्वॉल्व हो भी जाते हैं, बट वहां पर बीइंग अ मदर, क्योंकि माँ की गोद पहली दरसगाह है. जैसे मैंने सिस्टर ओलिविया की हॉलोवीन टाइम पे वीडियो देखी थी, इन्होंने अब्राहम को वेरी नाइसली सिखा दिया था, उसको बता दिया था, एंड द वे ही वाज स्पीकिंग इट वाज अमेजिंग. कि वो बात अब बचपन में जब उसके अंदर पड़ गई है, वो कभी भी इस चीज को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से उसने उस चीज को कंडेम किया है, वो ना सिर्फ खुद उसको कंडेम करेगा अपनी होल लाइफ में, दूसरों को भी डेफिनेटली टीच करेगा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया, इट्स रॉन्ग, डोंट डू दैट. और सेम ऐसे ही एज के हम सब जानते हैं कि क्रिसमस इज द सीजन, अभी क्रिसमस का सीजन है, तो बहुत सारी डेकोरेशंस, अननेसेसरी डेकोरेशंस हम करते हैं जिसको करने की जरूरत नहीं है. बेसिकली आपको करना है, आप हल्का फुल्का करो, बट बच्चों को ये मत बताओ कि इट्स अकॉर्डिंग टू बाइबल. अगर देखिए हम कुर्बानी को लेते हैं, जैसा कि पुराने अहद में कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, इस गुनाह की ये कुर्बानी, इस बात की ये कुर्बानी, इतने बछड़े, इतने बकरे, इतना खून, इतनी चर्बी, ये वो सब अगर आज हमें भी करना पड़ रहा होता तो हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, राइट. तो सेम ऐसे ही जो क्रिसमस सेलिब्रेट करें, दैट्स ओनली बर्थ ऑफ जीसस, कि जीसस पैदा हुए और अब वो हमारी जिंदगी में पैदा हो. जो फ्रूट्स हैं जो हम डेकोरेशंस ट्री के ऊपर हैंग करते हैं, वो डेकोरेशंस, वो तो आपने फिर से उसको क्लोज करके वापस डब्बे में डाल देना है, बट विच डेकोरेशन कैन शो योर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, दैट इज फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट. पाकरू के फल उसको दिखाइए, उसको बताइए, बेटा योर बॉडी इज ट्री, आपका बदन पाकरू की हैकल है, आपका बदन जो है वो क्रिसमस ट्री है, इसको डेकोरेट करो. 9 फ्रूट है वहां पर, वो लगाओ अपनी बॉडी में, भरो अपने आप को उन फ्रूट्स के साथ, तो डेफिनेटली तुम प्रॉस्पर होगे, तुम पहचाने जाओगे, क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है. मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ट्री को मत लगाओ, बट टीच द राइट थिंग टू योर चिल्ड्रन. फिर दूसरी चीज सेंटा क्लॉज रहता है. बच्चों को एक फैंटेसी में हमने रखा हुआ है, इग्नोरेंस में रखा हुआ है कि सेंटा आता है नाइट में, वो गिफ्ट्स पेरेंट्स सब लेकर आते हैं, रखते हैं, बट बच्चे को हम झूठ बोलते हैं, वी आर लाइंग, ठीक है, जो कि राइट नहीं है. बट आई एम टेलिंग कि आप अपने बच्चे को बताओ कि एक रिचुअल थी, एक टाइम था, ये सब स्टोरीज बन चुकी हुई हैं, बुक्स आर अवेलेबल एंड वीडियोज आर ऑल्सो देयर, हम उनको दिखा सकते हैं कि ये सब चीजें कहाँ से आती हैं. बट जो आपके घर पे आपको क्रिसमस पे या किसी भी तरह से प्रेजेंट्स मिलते हैं, पेरेंट्स आर प्रोवाइडिंग और द फैमिलीज
आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। हमने सेंटा का नाम लेके नहीं कहना, बिकॉज हम एमिरेट्स मॉल गए तो वहां पर बहुत बड़ा ट्री और उसके ऊपर सबने अपनी विशेष लगी थी, BMW, GMC, ब्ला ब्ला। तो लाइक सेंटा इज नॉट गॉड, टेल देम सेंटा इज नॉट गॉड, गॉड इज द ओनली प्रोवाइडर। वो ही सब कुछ मुहैया करता है, माँ बाप को भी वही देता है और बच्चों के लिए भी सब कुछ वही मुहैया करता है। फिर हमने अपने बच्चों को सिखाना है हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देयर बॉडी, बिकॉज व्हेन दे गो टू स्कूल, व्हेन दे गो टू पार्क टू प्ले आउटसाइड, तो लाइक समटाइम हम उनको अकेला भी ट्राई करते हैं, बिकॉज हर वक्त हम बीइंग अ पेरेंट्स उनके साथ साथ तो नहीं रह सकते। जैसे थोड़ा बड़े होना शुरू होते हैं, समझदार होते हैं, तो हम उनको थोड़ा टाइम देते हैं कि वो अकेले भी खेले अपने दोस्तों के साथ। हमने उनको टीच करना है कि लाइक अगर आपको कोई बुरे तरीके से टच करता है, वी हैव टू टेल देम, डोंट फील हेजिटेशन, बिकॉज वो वक्त चला गया, वो पुरानी माएँ चली गई जो बताते रहे होंगे डेफिनेटली वो भी, और बट हमने अभी ज्यादा अवेयरनेस देनी है, बिकॉज अभी जो सोशल मीडिया है ये एक स्वीट पॉइजन की तरह है। हम लोग जब अपने बच्चों की कुछ वीडियो या फोटोज या डांसिंग मूव्स जो उनके होते हैं उसको जब सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, तो कुछ इवल आईज होती हैं, वो उनको फॉलो करती हैं। तो आप नहीं सोच सकते कि आप हर वक्त उनके साथ नहीं है, किसके दिमाग में उनके लिए क्या चल रहा है। वो अगर जाके आपके बच्चे को अटैक करता है, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपने उनको पहले अवेयरनेस देनी है, और सोशल मीडिया से भी लिमिटेड वे में आपने अपने आप को जोड़ना है, बिकॉज शैतान को हम अपनी सारी की सारी वो सीक्रेट्स नहीं दे सकते। हमारे पास जो बेस्ट होता है हम मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, तो हमने चीजों को हाइड भी रखना है, अपनी ब्लेसिंग्स को हाइड भी रखना है। सेम ऐसे ही जैसे ही खुदा बरकत देता है, औलाद की बरकत देता है, तो जो माँ बनने वाली बहनें होती हैं, फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज माय स्ट्रिप, तो दैट्स नॉट गुड। आप अपनी बरकत को, जिस पौधे को, जिस बीज को संभालना, ग्रो करना खुदा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोंट शो टू द वर्ल्ड। दुनिया उसको देख लेगी जब खुदा उसको दुनिया में लेकर आएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योर ब्लेसिंग। सेम ये भी मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में किया है। मैंने ऑलरेडी इस चीज को पास्टर बाबू डैनियल की जो प्रोफेसी हमारे लिए थी, सेम मैंने अपना मुंह बंद रखा, अपने रिश्तेदारों को, फैमिली में किसी को नहीं बोला टिल एंड जब मैं पाकिस्तान डिलीवरी के लिए गई थी। उससे पहले नो वन नोज बट आई एम कैरिंग। तो सेम अपनी ब्लेसिंग को छुपा के रखिए, हाइड रखिए, क्योंकि शैतान वो आपसे प्यार नहीं करता, खुदा आपसे प्यार करता है। शैतान चोर की तरह आता है और चोर का काम है मारना, चुराना और तबाह करना। जब एक लड़की होती है, जैसे हमारी अनमैरिड बहनें हैं यहाँ पर, जब तक शादी नहीं होती है तो उनकी जो इमेजिनेशन होती है उसमें बहुत सारी फैंटेसीज होती हैं, जो कि एक्चुअली बाद में वैसी चीजें होती नहीं हैं। बाद में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हमने बर्दाश्त भी करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हमने इग्नोर भी करना होता है अपने रिश्ते को बेस्ट बनाने के लिए। तो आपके लिए भी यही है कि आप खुदा के कलाम को अभी से अपने हाथ में ले लीजिए, ताकि आने वाली लाइफ में जहां जहां आप किसी भी मुश्किल में, खुदा ना करे कोई मुश्किल है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो खुदा का कलाम आपको विजडम दे। आप जो फैसला करो वो अफरा तफरी का फैसला नहीं हो, जज्बाती फैसला नहीं हो, हिकमत का फैसला हो। और वो हिकमत कहाँ से आएगी? खुदा के कलाम से। और कलाम अगर आज आपने खुद को भरा नहीं है खुदा के कलाम से, तो वो बाद में सिचुएशंस वर्स्ट हो जाती हैं और फिर हम गिव अप कर देते हैं। तो हमारा खुदा हमें गिव अप करना नहीं सिखाता है, वो हमारा मददगार है, वो हमें रिजल्ट्स देता है। तो रिजल्ट कैसे आएंगे? अगर आज हमने अपने आप को नहीं भरा तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पहले हमने पढ़ना होता है। ऐसे ही आप शादी के लिए खुद को तैयार कर रहे हो या शादी होने वाली है, तो अपने लिए खुदा के कलाम के जो सुनहरे मोती हैं, कीमती मोती हैं, इनको परोलो, अपने गले का हार इसको बना लो। जो गोल्ड बाद में मिलना है, ये गोल्ड से पहले अपने आप को सजा लो, संवार लो, ये कलाम का लिबास पहन लो, ताकि उस वक्त जब आप अपनी नई जिंदगी का आगाज कर रहे हो
تو یہ آپ کی جو خوبصورت کلام سے جو سجی سنوری زندگی ہے، اس کے اوپر شیطان کا ایک وار بھی نہیں چلے گا، یہ گارنٹی ہے کلام سے۔ ماں اور بیوی زندگی اور گھرانے کی خوبصورتی ہے، اور زندگی کی خوبصورتی ماں اور بیوی کے دم سے ہے۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو ایوری ون۔ ابھی میں آپ کی بھرپور تالیوں میں اپنی بہت پیاری بہن سنتھیا کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور بیٹی کا کردار اس کو ایکسپلین کریں گے۔ گاڈ بلیس یو۔